भारत में पिकल बॉल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। गुरुग्राम में पिकल बॉल किंगडम इंडिया ने अपना पहला फ्लैगशिप मास्टर क्लब लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक क्लब नहीं बल्कि भारत में पिकल बॉल के भविष्य की नई शुरुआत माना जा रहा है। इस खास मौके पर पिकल बॉल किंगडम यूएसए के संस्थापक और सीईओ रेस रॉड्रिग्स, जेफ डेनलॉप और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉल्टन रॉबिन्सन भी भारत पहुंचे। डॉल्टन यहां खिलाड़ियों और कोचों को ट्रेनिंग देंगे ताकि भारतीय खिलाड़ियों को भी विश्व स्तरीय कोचिंग का फ़ायदा मिल सके। इस मास्टर क्लब में 8 शानदार इंडोर कोर्ट बनाए गए हैं जहां प्रोफेशनल कोचिंग, बड़े टूर्नामेंट, सोशल लीग, कॉर्पोरेट इवेंट्स और युवाओं के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। All here today. To set the stage, Pickleball Kingdom is the world's leading indoor pickleball entity. India holds a special place in this journey, chosen as the first international market outside the United States and brought to life right here with the opening of Pickleball Kingdom Gurugram, the flagship location and the master club for the Pickleball Kingdom in India. This milestone marks the beginning of a nationwide expansion set to bring world-class indoor pickleball facilities and experiences to the communities all across India. It is my honor to introduce the founder and CEO of Pickleball Kingdom, Mr. Ace Rodriguez, with us. Thank you. Ace's vision has been central to building Pickleball Kingdom in the largest indoor pickleball entity all around the world, with a focus on creating and welcoming environments where players of all ages, skills, levels can learn, compete, connect, and belong. I'll pass the mic to Mr. Ace Rodriguez, and he'll share his vision. Thank you. If you don't mind, I'm going to stand up. Very excited, very honored to be here. Quick question: how many of you have played pickleball before? Anybody in here? Nobody. I would invite all of you to try. Yeah, thank you. Pickleball is sort of like tennis and table tennis. Very similar. It's very fun, easy to learn. I will tell you, I got involved in pickleball about 5 years ago, and friends were playing. They invited me to play, and I tried it. A lot of fun. I started inviting other people, and what I quickly saw was it's good for you physically, good for you socially, having fun with other people, good for you mentally. And so we decided playing indoors is better than playing outdoors. No sun, no wind, no rain, no dust, much better facilities. So we built our first club in Chandler, knowing we're gonna franchise. I knew through this brand, Pickleball Kingdom, one day we'd be worldwide. And from the first day, I said my number one choice after we build the United States is India. You know? And Kalo, India, right? It's time to play. And India being the most populated country in the world, it just made sense that there's a close relationship with pickleball, India, the United States. The majority of our franchisees in America are of Indian descent. So it's a great honor for us to be here. And so looking at growing, I'm so pleased to be with Back Wizards, these three gentlemen. So how about a hand for Anuj, Banu, and Hugh here. So a hand for the three of them. Round of applause, guys. And bringing our team to help. This is the first of many clubs we're going to have in India. So we want to reach throughout all the country. Any business people, successful professionals who want to be a part of this, this is the beginning of a movement. Please contact our Indian team. So from the United States, I brought our Vice President of Operations to make sure our clubs are going to work correctly and have great service. That's Mr. Jeff Dunlap. So I have Jeff. And I know pickleball is a very new sport in India. There's so many great athletes, you know, so many great people from tennis and badminton and everything else. Pickleball is a new thing, and I wanted people to see what a top level player is. So I brought a professional
in pickleball who plays at an extremely high level, also a coach and our director of pickleball, and that's Dalton Robinson. Woo. So again, I would like to say this is the beginning of a new movement, not just for Pickleball Kingdom, but for pickleball and for India. What we've seen with pickleball in the United States, families have gotten closer, husbands and wives, parents and their kids, their brothers, sisters, cousins, companies. We would like to invite every company to have a team building event right here in Pickleball Kingdom. Bring your family, bring your friends, get healthy, have fun, enjoy other people, and ultimately be a part of this new movement, because it is going to be something big. We all know it's going to be an Olympic sport. It's already a professional sport, and our team here, Pickleball Kingdom India, is going to be a part of all of that. I believe some Olympians, professionals are going to be coming out of this club, and we want all of you to participate in that. So whether it's from a business level to be a part of the new clubs, or it's as a member, everybody is welcome. Our number one thing that we always say is welcome to the kingdom. So I hope you, as our honored guests, as journalists, as media, I hope you feel welcome to the kingdom, and please pass our message on. We want all of India to feel welcomed to come into Pickleball Kingdom. Everybody here, we are grateful and thankful कि आप सब जने यहाँ आए अपना टाइम निकाल के. We've got the leadership from the US here who've come for this occasion. Pickleball Kingdom US का सबसे बड़ा ब्रांड है. इन्होंने US में 300 से ज़्यादा फ्रेंचाइजेस ऑलरेडी ओपन करी हैं. सारी इंडोर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे. US के बाद जो पहली कंट्री इन्होंने एंटर करी है वो है इंडिया. इंडिया में हमारे साथ पार्टनरशिप हुई है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू केस, जेफ एंड द टीम. What we want to do is we want to take this sport to all the tier 2, tier 3 cities in India. इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. वी नो दैट फैसिलिटीज़ वगैरह इतनी अवेलेबल नहीं है टियर 2 और टियर 3 में. तो वी वांट टू वर्क विद द गवर्निंग बॉडी IPA, और ये स्पोर्ट को हम टियर 2, टियर 3 लेके जाना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ से हमें प्लेयर्स मिलेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, उनको इक्विपमेंट देना चाहते हैं खेलने के लिए, उनको स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं ताकि वो खेल के इंडिया को रिप्रेजेंट करें. एस एस ने कहा कि 2028 में ये स्पोर्ट ओलंपिक्स में भी है, तो विच इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज अ कंट्री टू ग्रूम पीपल, टू कोच पीपल, ताकि वो रेडी हो जाके इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकें. ये अभी हमारा पहला सेंटर है. हमारी काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं. हम पैन इंडिया खोलना चाहते हैं. हमारे पास पूरा पैन इंडिया का राइट्स है. प्लस हम IPA के साथ भी काम करेंगे टूर्नामेंट्स वगैरह के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वी वांट टू ग्रो दिस. It started with Ace's vision. He wanted to be here first and foremost. This was the first place he wanted to be internationally. We know how popular different paddle sports and badminton is here. It just made sense for us to be here first, and we're excited to be here for sure. How much difference is between the table tennis or the pickleball? The best part about pickleball is that you can play at any age. I have seen youngsters, little ones playing. I have the seen co-founder and director of BAQ Visits Private Limited. ये हमारी कंपनी है जो हम तीनों फ्रेंड्स ने मिलके बनाई है. हमने ये स्पोर्ट में हम इसलिए आए क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है. सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है. इंडिया में इसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, एंड हम चाहते हैं कि हम इस स्पोर्ट को इंडिया में लेके आएँ, एज अ बिज़नेस लेके आएँ, एज अ ग्रास रूट लेके आएँ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ है. हम उस पर कैपिटलाइज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज कैटेगरी है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके लिए टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, या नहीं भी खेला है, उसके लिए भी ये स्पोर्ट खेलना बहुत आसान है. एक बहुत ही सिंपल प्लास्टिक बॉल है, ये फाइबर ग्लास रैकेट है जिससे आप खेल सकते हैं. सीखना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. रूल्स बहुत सिंपल हैं.
11 पॉइंट का एक सेट होता है, आप उस सेट पे खेलते हैं, 2 सेट खेलिए, 3 सेट खेलिए, आप सिंगल्स में खेल सकते हैं या डबल्स में 4 जने मिलके भी खेल सकते हैं। ठीक है सर, अब भारत में जैसे ये नया गेम है तो किस तरीके का जो है कि अलग है थोड़ा उसको। देखिए, भारत में अभी तक अगर आप देखिए तो क्रिकेट के अलावा और कोई भी स्पोर्ट नहीं है जिसमें एक इंडियन प्लेयर्स की रैंकिंग हो। टेनिस में आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे सानिया मिर्ज़ा, सिर्फ एक ही को जानते हैं। या क्रिकेट में तो हमारे इतने सारे प्लेयर्स हैं जो टॉप रैंक में हैं, पर ऐसा और फुटबॉल में कोई रैंक प्लेयर है इंडिया में नहीं है। इसके अलावा बैडमिंटन में भी एक टाइम पे थे, अब नहीं है, गोपी चंद वगैरह थे, अब नहीं है। पिकल बॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंडिया में हम अगर सब मिलके कोशिश करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हैं ताकि वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, बाहर से मेडल्स जीत के आएँ। और इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये एज वाइज कैटेगरी में खेल सकते हैं लोग, 15 प्लस, 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस कैटेगरी भी है। तो बहुत सारे एल्डरली पीपल भी हैं जिनका 50 प्लस एज है, वो भी ये स्पोर्ट खेल रहे हैं। और एक टाइम पे उनके भी मन में है कि मेरे को भी शायद चांस मिलेगा ओलंपिक्स जाने का। आईपीए हमें को उस चीज़ों से हेल्प कर रही है और आईपीए चाहती है कि जितने भी लोग आ सकें, जितने भी लोग इस गेम में आ सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, खेल सकें, वही हम सबका उद्देश्य है और यही हम करना चाहते हैं ताकि ये स्पोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करें, मेडल्स जीतें और अपनी कंट्री के लिए ये जो टॉप लेवल प्राइजेस होते हैं वो लेके आए ओलंपिक्स वगैरह के। सर, इंडिया में ये सबसे पहला सेंटर है, इसको मास्टर क्लब बोलते हैं। अब जो भी आएगा वो इस मास्टर क्लब को देख के अपना फिर खोलना चाहेगा। हो सकता है वो 4 कोर्ट का खोले, हो सकता है वो 6 कोर्ट का खोले। अभी तक कुछ खुला नहीं था, ये सबसे पहला खुला है, इसीलिए हम इस पे फोकस कर रहे थे। इसके बाद हम फ्रेंचाइज पे फोकस करेंगे। एक ब्रांच इसका दिल्ली में भी ओपनिंग हुई है क्या? सर, एक सिंगल कोर्ट हमने ओपन करा है मैक्स हाउस ओखला में। वो सिर्फ मैक्स हाउस के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं उन ऑफिसेज के लिए करा है। वो हमारा वेरी फर्स्ट टाइप था। वो हमने छत पे एक कोर्ट खोला था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है उस कोर्ट का। बट ये जो है ये हमारी मेन मास्टर क्लब फैसिलिटी है। आप देख सकते हैं 8 कोर्ट्स यहाँ पे खुले हैं। पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे पिकल बॉल के लिए इंडोर कोर्ट फैसिलिटी, इतनी बड़ी फैसिलिटी कहीं पे नहीं है। 8 कोर्ट की इंडोर फैसिलिटी कहीं पे भी नहीं है पूरे इंडिया में। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और ऐसी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ खुलेंगी सिमिलर टू दिस इन इंडिया। और मैं पिकल बॉल किंगडम इंडिया का को फाउंडर हूँ अलॉन्ग विद भानु जी एंड विद कुदरत जी। हम बहुत खुश हैं कि आप लोग आए हैं पहले यहाँ पर, और हम बहुत खुश हैं जो हमने सोचा था, क्योंकि जैसे आपने हमारे सीईओ से सुना कि आफ्टर यूएस के बाद जब 300 कोर्ट वहाँ पे उन्होंने फ्रेंचाइज भेज दिए थे कि आफ्टर यूएस कहाँ जाएं वर्ल्ड में, तो उन्होंने इंडिया को ही आइडेंटिफाई किया और इंडिया में हमारे साथ ही उन्होंने नाता जोड़ा। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पहली बात, एज इंडियन आई थिंक वी आर वेरी प्राउड। सेकेंड, कि उन्होंने कहा कि आप ऐसा बना सकते हो जैसा वहाँ पर है, और हमने ऐसा बना के दिखाया उनको। तो ये और भी गर्व की बात है कि हम बना पाए यहाँ पे, और अब ऐसा ही और बना के हम बेचेंगे तो वो फ्रेंचाइज हो गया, राइट। तो एक है कि आप बनाओ और सोचो कुछ, और एक उस सोच को आप एक ट्रांसलेट करो एग्जीक्यूशन में, और तीसरा है कि आप बाकी लोगों को भी सोचो कि यार हम इधर गुड़गांव के लिए क्यों, किसी को इंदौर में चाहिए इंदौर में दे देंगे, किसी को हैदराबाद में चाहिए, किसी को मुरादाबाद में चाहिए वहाँ दे देंगे। तो भारत के कोई भी कोने में ये बन सकता है और ये फ्रेंचाइज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और जैसे हमारे सीईओ ने बोला, खेलो भारत और खेलो इंडिया, वी आर प्रमोटिंग दैट। जो फिट रहेंगे इंडिया में, जो बेटर रहेंगे, कंपेटिटिव रहेंगे, उसी से देश आगे बढ़ेगा। तो हमारा वही विजन है। रोल बहुत बड़ा रहेगा आगे जाके, बिकॉज आगे क्या होगा, जो कोचिंग है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि हमें खेलो इंडिया करना है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए हम आपको कोचिंग के पैसे देंगे। तो हमारा यही है कि हम पिकल बॉल एसोसिएशन के थ्रू जाएंगे, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स का एक एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन के बाद पैसे होते हैं। एसोसिएशन हर एक रीजन में सेंटर ढूंढते हैं, कोचेस ढूंढते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, और हम अपना फैसिलिटी देंगे, उनको सेंटर देंगे। ये जहाँ जहाँ कहीं और भी हम सेंटर खोल रहे हैं, फिर हम उन लोगों को यही बोलेंगे कि आप देखो, गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो पिकल बॉल एसोसिएशन जो आपको दे रही है ये पैसा, आप ये फैसिलिटी बनाओ, स्कूल में बनाओ, और आपको इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा सब्सिडी देगी। पर आपको मेन होना चाहिए कि पैसे नहीं बनाने हैं, मेन होना चाहिए कि मुझे अगली जो पीढ़ी है उसको बेटर बनाना है, मजबूत बनाना है।